Okay, and इसको check भी कर लेते हैं. Yes, okay. So Bismillah Rahman Rahim, and welcome to lab number 9 of electrical machines. This lab, the title of this lab is to observe the load characteristics of a DC compound motor. So let us look at the objectives. There are two main objectives of this lab. First objective is to learn the basic connections of a DC compound motor, and the second objective is to observe the speed torque characteristics of a compound motor when the load is changed on the shaft. So it is just like what we did for the series and shunt machine. The apparatus, in the apparatus we have a DC compound to DC shunt coupled machine, and then we need a control panel in which we need some ammeters, voltmeters, a rheostat, and a DC variable power supply, a tachometer to measure the speed of the shaft, variable DC load, and connecting leads. So if you see the panel is very identical to what you saw for the DC series and DC shunt machine. So at the top we have some meters, and then we have a load indicator which is going to be connected to the load cell. It is going to be used to measure the torque of the shaft or the motor or the generator. So the torque is same for, because these are coupled, so torque will be same for the generator, motor. And then there is a breaker which is actually going to measure which is the current protection, and it also serves as the on and off, or plug or turn on and off, to turn on and off this panel. Then we have identical DC power supply. This is a fixed supply. There's a variable supply. Then there's a rheostat, a potentiometer actually, another fixed supply, and a variable load. So coming towards the generator and motor. So on the left side we have a generator, and generator is identical to what we had in the previous labs. It's a DC shunt generator, and it has basic connections F1, F2. This is the field of this generator, and then we have A1 and A2. It is the armature of this generator. Okay, so this is identical to what you saw in the previous labs. Then on the right side we have the motor. For the motor we have F1, F2, and A1 and A2. So now A1 and A2 is the armature, and F1 and F2 is the field which is going to be connected with this armature in shunt. And then there is another field, which has two terminals, S1 and S2. And this field will be connected in series with this system. So as depicted by its name, DC compound is a combination of a DC series and DC shunt machine. So there are two fields. One field, S1, S2, it is connected in series with this F1, F2, and A1, A2, which is actually the field and the
armature, and then the other field F1 and F2 is connected in parallel. They are connected across or connected in shunt to each other. So you can see that now it is a combination of a DC series motor and DC compound motor. So it will be having the uh, characteristic of both DC shunt and DC series. Okay, so it's a combination of DC series and DC shunt motor. तो अब DC जो सीरीज मोटर थी, उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, बट विद द लोड, जब इस पर लोड आ जाता था तो फिर क्या होता था कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाती थी. देन ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस शंट मशीन के जिसकी स्पीड सीरीज से कम थी, स्पीड उसकी भी ज़्यादा थी लेकिन सीरीज से कम थी. एंड देयर वाज अनदर, इसका गुड पॉइंट ये था कि उसकी स्पीड कम, बहुत थोड़ी कम होती थी, मतलब कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती थी विद लोड. ठीक है, तो अगर ऐसा ऑपरेशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको स्पीड भी चाहिए और फिर आपको मोटर का पावर भी चाहिए कि उसकी स्पीड मेंटेन रहे, उसका टॉर्क अच्छा हो एक्चुअली, तो वहाँ पे आपको डीसी कंपाउंड मोटर काम आएगी. एंड देन देयर आर टू टाइप्स, एक कम्युलेटिव कंपाउंड है, ठीक है, और एक डिफरेंशियल कंपाउंड है. कम्युलेटिव कंपाउंड में आपके पास दोनों फील्ड्स एक दूसरे को, एक दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि सीरीज़ की फील्ड है और जो शंट की फील्ड है, वो एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं कम्युलेटिव कंपाउंड में, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड है उसमें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं. ठीक है, ओके. बाय द वे, जो भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझे माइक ओपन करके बता भी सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है टाइप भी आप कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एंड मैं साथ साथ आंसर करता रहूँगा उनको. ओके, अच्छा जी, नो मान कह रहे हैं, ओके जी, ठीक है. ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द I'll just correct it. This is compound. Okay, so yes, this is compound. So मैं just इसको correct कर देता हूँ. And then we will go towards the circuit diagram. Okay, so this is just mistyping over here. Okay, so now coming towards the circuit diagram. On the circuit diagram, if you see on the right hand side, तो ये बिल्कुल सेम है हमारे पास जो सर्किट है that we used for the generator in the previous labs. So you have A1 and you have A2. This is A2, and the field is actually connected to a DC power supply, and then the output is actually taken by the armature terminals. और फिर एक वेरिएबल लोड हम लगा देते हैं और फिर लोड को हम चेंज करते हैं. जब हम शाफ्ट पे हम इलेक्ट्रिकल, एक्चुअली जनरेटर पे जब हम इलेक्ट्रिकल लोड डालते हैं, वो आपके शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड डालता है और वो मैकेनिकल लोड फिर जाता है आपके मोटर के ऊपर. तो जो ये यहाँ पे कंडीशन है, तो हमारे पास लैब में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि हम कोई कन्वेयर बेल्ट हो या फिर कोई हमने उसके साथ कुछ शाफ्ट के साथ कुछ लोड, ऐसा मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया हो. तो हम लैब में इलेक्ट्रिकल लोड के थ्रू ही उसके ऊपर मैकेनिकल लोड हम डालते हैं. ठीक है, सो दिस डायग्राम इज सेम टू व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस लैब्स. फिर अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पे हमारे मोटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कनेक्शन ओवर हेयर. तो मैं इसको सेट भी कर देता हूँ. F3 और F4 लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली S1 एंड S2.
और ये वो सीरीज़ फील्ड है, अगर आप देखें तो ये वो सीरीज़ फील्ड है कि जो हमने कनेक्ट करनी है अपने हमारे फील्ड जो शंट फील्ड आर्मेचर है उसके साथ। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शंट फील्ड हमारे पास है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है इन पैरेलल विद दिस आर्मेचर। सो आइडेंटिकल कनेक्शन है तकरीबन शंट और सीरीज़ के, लेकिन अब दोनों को कंबाइन करके बनाना है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि नाम से इसके डिपेक्ट हो रहा है कि इट इज़ अ कंपाउंड, यानी कि दोनों जो एक सीरीज़ मोटर थी डीसी और एक शंट मोटर थी, उसका ये कॉम्बिनेशन है। सो नाम से शो हो रहा है कि इट इज़ अ कंपाउंड मोटर। अच्छा जी, डीसी सप्लाई हम इसको देंगे अराउंड 100 वोल्ट्स की, ठीक है। रेटिंग तो इसकी ज़्यादा है लेकिन 100 वोल्ट्स पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। प्रोसीजर देख लेते हैं जी। तो प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट दी सीरीज फील्ड इन ओके। सो थोड़ा सा मैं इसको भी चेंज करता हूँ। कनेक्ट दिस सीरीज फील्ड in series with the shunt field and armature. Okay, so first of all we have to connect the series field again in series with the shunt field and armature. So इन दोनों को आपने शंट फील्ड एंड आर्मेचर, इनको आपने शंट में पैरेलल में कनेक्ट कर देना है और फिर इस सीरीज़ फील्ड इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। देन आपने डीसी वोल्टेज देना है अराउंड 100 वोल्ट्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस कंपाउंड मोटर यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जनरेटर जो है उस पर लोड डाला हो, ठीक है। मिनिमम लोड या जितना भी आपने स्टार्टिंग में आपने लोड डालना है, कुछ ना कुछ लोड आपके शाफ्ट पे होना, जनरेटर पे होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मोटर को डैमेज होने का ख़तरा होगा। सो देयरफॉर मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ लोड, मतलब विदाउट लोड इन मोटर्स को ना चलाएं। जितनी भी हाई स्पीड मोटर्स होती हैं तो अगर विदाउट लोड वो चलें तो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द लोड और फिर हम टेबल में वैल्यूज़ नोट करेंगे। एंड टर्मिनल वोल्टेज जो है उसका मस्ट रिमेन कांस्टेंट, और इसका ये भी मतलब है कि आपने जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना है। सो एज यू नो कि ड्यू टू कोविड-19 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हम वहाँ पे नहीं आ सकते, लैब हम नहीं अटेंड कर सकते, तो आई एम गोइंग टू डू इट ऑन मल्टीसिम जस्ट लाइक हमने प्रीवियस लैब्स में किया है। एंड ऑन मल्टीसिम वी विल बी परफॉर्मिंग दिस लैब अगेन। जो राइट साइड है वो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी फील्ड कनेक्ट की हुई है जी, ठीक है। देन जो आर्मेचर है उसको हमने लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। शाफ्ट पे हमने आरपीएम फाइंड करना है, टॉर्क हम लेंगे जी इसका। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द सेम जो हमने मोटर अपनी रेटेड मोटर यूज़ की थी फॉर सीरीज़ एंड शंट कनेक्शंस, तो वही सेम है जी, ठीक है। एक रियोस्टेट लगा हुआ है फील्ड के साथ, लेकिन जो चेंज है वो क्या है कि यहाँ पे अब, ठीक है, हमने, अगर मैं बाकी सारे इरेज कर दूँ तो नाउ दिस इज़ जो एक इंडक्टर मैंने लगाया है, दिस इज़ S1 एंड S2, दिस इज़ दी सीरीज़ फील्ड, और इसको मैं सीरीज़ में लगाऊंगा अपने जो मेरे जो प्रीवियसली शंट कनेक्शंस थे उसके साथ, ठीक है। सो ये जस्ट इसमें एक चेंज है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी एकदम मोटर के एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि एक नई वाइंडिंग उसके साथ आ गई है। एंड देन उसके जो पैरामीटर्स है, जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हम चले जाते हैं मल्टीसिम पे। लेट अस ओपन दी मल्टीसिम। अच्छा जी, तो अब फ़हद है, नुमान, हसन, ठीक है। आज अटेंडेंस कम है, रमज़ान की वजह से शायद सब लोग सहरी करके सो रहे हैं। अच्छा जी, और अच्छा, ओके, सो मल्टीसिम हमारे पास ओपन हो गया है।
एंड इन मल्टीसिम हम इसको बनाएंगे। अपना सर्किट डायग्राम भी राइट साइड पे अपने पास लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं स्क्रीन के, ताकि हमें ये नज़र आए। अच्छा जी, जिन लोगों को अगर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, अगर लैपटॉप पे आप देख रहे हैं देन इट्स फाइन, लेकिन इफ़ यू आर वाचिंग इट ऑन मोबाइल स्क्रीन, तो अगर आपको स्क्रीन से ही नज़र नहीं आ रही तो आप जूम कर सकते हैं। डबल क्लिक कर लें स्क्रीन पे, यू विल जूम इन, और अदरवाइज यू कैन सिंपली जस्ट जूम लाइक आप किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, कि इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छा आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डीसी पावर सप्लाई लेनी है जी, और इस डीसी पावर सप्लाई को हम जाएंगे प्लेस, क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, इन ग्रुप्स क्लिक ऑन सोर्सेज एंड क्लिक ऑन पावर सोर्सेज, क्लिक ऑन डीसी पावर एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डीसी पावर आ गई है। देन वी आल्सो नीड अ ग्राउंड, सो ओके कर दें एंड यू विल गेट दी ग्राउंड एज वेल। देन जो सीरीज़ हमारी जो फील्ड है, ठीक है, तो आप दोबारा ऑल ग्रुप्स में आ जाएं एंड सीरीज़ फील्ड के लिए अब अगर हम आ जाते हैं बेसिक वर्चुअल पे आप क्लिक कर लें। ओके, अगेन, so just click on basic virtual, and in basic virtual you will get inductor advanced. Now this is an inductor, a simple inductor, but it has also the parameters of internal resistance as well. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड जो वाइंडिंग होती हैं जितनी भी, तो those windings are actually they have some resistance and they have some इंडक्टेंस। ठीक है, जितनी भी आपकी मोटर में वाइंडिंग होती है तो उनमें कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ इंडक्टेंस होता है। सो यहाँ पे जो ये इंडक्टर है तो वो सेम जो फिनोमिना है वो यहाँ पे डिपिक्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। देन वी नीड अ पोटेंशियोमीटर, सो क्लिक ऑन ऑल ग्रुप्स और गो टू बेसिक्स, एंड बेसिक्स के अंदर देखें सबसे एंड में पोटेंशियोमीटर है, तो 1 के का एक पोटेंशियोमीटर जिस तरह हम हमेशा रखते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव हमें एक मोटर चाहिए। ठीक है, तो रेटेड वर्चुअल के अंदर आपको ये मोटर मिल जाती है। अगर आप बेसिक्स पे क्लिक करते हैं या ऑल ग्रुप्स में भी आप आ जाएं तो आपको रेटेड वर्चुअल में ये मोटर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसान जो है, ठीक है, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा आसान यही है कि आप बेसिक्स पे क्लिक कर लें तो ये रेटेड वर्चुअल इधर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक वर्चुअल से इंडक्टर हमने उठाया है एंड नाउ रेटेड वर्चुअल से हम जो हमारी मोटर है वो आ जाएगी। ठीक है, मोटर रेटेड। ओके, सो लेट्स क्लोज इट, जूम इन मैं कर लेता हूँ। सो कनेक्शंस हम बना लेते हैं। कुछ मल्टीमीटर्स, 2 मल्टीमीटर हमें चाहिए जी, तो राइट साइड पे जो टूल बार है उस पर आपको मिल जाएगा। एक यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ इसको थोड़ा सा मैं मिरर भी कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटली, अब मेरे पास ये एक आइडियल कंडीशन में आ जाएगा। एंड मेरी जो पावर सप्लाई है आई नीड 100 वोल्ट्स, इसको मैं 100 वोल्ट्स पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको ज़रा सा आगे मैं कर देता हूँ एंड इसको रोटेट भी कर लेते हैं। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो अब ये तकरीबन वो चीज़ बन गई है जो हमें आउटपुट भी चाहिए। अच्छा वापस इसको ज़रा वापस कंडीशन में ले आते हैं जैसे ये था। अच्छा, तो पहले रोटेट कर देते हैं जी, सॉरी वी हैव टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, और फिर उसके बाद इसको फ्लिप कर दें तो अब ये इस तरह ही आ गया जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। अच्छा, जो ये इंडक्टर है इसकी यही हमारे पास 1 मिली हेनरी
और तकरीबन 173 इसकी इंडक्टर की सीरीज़ रेजिस्टेंस है, 173 मिली ओहम्स। ठीक है जी। मोटर को भी अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि यहाँ पे सप्लाई के साथ एक वोल्टमीटर लगाना है जी। सो कनेक्ट अ वोल्टमीटर विद योर सप्लाई एंड ग्राउंड भी इसके साथ लगा दें। And as I told you in previous labs that all the multimeters are in the multisim are actually by default they are DC voltmeters. So अगर आप DC voltage के लिए यूज़ कर रहे हैं तो you don't need to configure it. Then we need to connect a ammeter in series और ये मीटर हमें मोटर का करंट देगा. You have to configure it to amps. Okay, so just double click on it and click on A and DC. Now this will be connected in, this is the series, now this is the series field and it will be connected in series with the motor. So ये आपके पास यहाँ से चला गया है फील्ड को एंड द अदर वन जो आर्मेचर का कनेक्शन है वो भी यहाँ से आप देंगे. ठीक है, तो पैरेलल में हमने यहाँ शंट में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है. इसको हमने 5% पे रखना है और फिर जो नेगेटिव है वो भी हमने इस तरह इसको कनेक्ट कर देते हैं. Here you go. थोड़ा सा मैं इसको स्क्वीज़ करूँगा ताकि फिर हमारे पास जो हमारे मीटर्स हैं उनकी भी जगह बने. ओके, तो ये कनेक्शन कहाँ गया जी, इसको वापस इधर लाते हैं. ओके, सो ये दोबारा से मैं इसको ज़रा सा मुझे स्क्वीज़ करना है जस्ट, और इसको भी मैं करीब ले आता हूँ. ओके, सो साथ साथ मैं इसको सेव भी कर दूंगा. जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब 9, तो इसको मैं साथ साथ सेव भी करता रहूँगा. ओके, और ये अच्छी आदत होती है इसको सेव करने की, क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो देन यू डोंट हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन, तो कुछ ना कुछ आपके पास उसमें सेव रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया है. जस्ट हमारी मोटर जनरेटर की रेटिंग रहती है, वो फिर हम एंड में कर लेंगे. ठीक है जी. सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अपनी अब जनरेटर साइड हमने बनानी है, और जनरेटर साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है जिस तरह हमने प्रीवियसली लैब से बनाई थी. तो क्लिक ऑन प्लेस, क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, देन क्लिक ऑन दी all groups, and in all groups, or you can simply go to electromechanical. Okay, so in electromechanical click on machines and select a DC machine wound field, paste it here. Then again you need a DC power source for the field, a ground, a potentiometer, okay, and then you need a bulb as well. So in all groups you will find the lamp, virtual lamp at the right bottom. You can also put a switch here, but स्विच की इतनी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम इसको अभी हमने लोड के साथ ही चलाना है, तो स्विच इट्स अप टू यू. आप लगाते हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाते तो इट्स ओके. ओके, सो नाउ जब हमें सब चीज़ें मिल गई हैं, तो सबसे पहले मोटर को आप वह फ्लिप कर दें.
ठीक है, एंड कनेक्टेड विद द शाफ्ट। देन आपने फील्ड कनेक्ट करनी है, तो एमीटर मल्टीमीटर लगा लें यहाँ पे ताकि फील्ड का करंट आपको पता चले। देन क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर लेते हैं और फिर इसको दोबारा से हम फ्लिप कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली ताकि हमें अच्छी शेप मिल जाए। मीटर भी देखें, जो इसका प्लस माइनस है, यू हैव टू फ्लिप इट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो आप प्लस माइनस इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारी सेंसिटिविटी है तकरीबन 100% पे है। ठीक है, फुल इसकी हम थोड़ा कम कर देते हैं, 95 पे कर देते हैं। एंड देन इसको हमने अगेन 100 वोल्ट्स हमने इसको देने हैं, और ये वेरिएबल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जी। देयर यू गो। और फिर ग्राउंड, चलें यहाँ तो ज़रूरत नहीं है ग्राउंड की। ठीक है, ओके, देन इसको हम रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज। अच्छा, और ये आपके आर्मेचर के साथ कनेक्ट हो जाए, और इसके साथ भी एक मीटर लगाना है जी, ताकि हमें इसका भी करंट पता चलता रहे कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है। इवन इसके साथ एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, तो मैं जस्ट स्क्वीज करता हूँ इसको, कनेक्शन को हल्का सा, इसको ज़रा सा इधर ले आते हैं, लेकिन हमें इसको डेफिनेटली यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगाना है। ठीक है, रोटेट करें जी इसको क्लॉकवाइज। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देन इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, और मीटर्स को कॉन्फ़िगर करना ना भूलें। मीटर्स को कॉन्फ़िगर ज़रूर करना है, स्पेशली जो आप फॉर एम्प्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके पास ओपन रहेंगे और आपका करंट पास नहीं होगा। ठीक है, जो वोल्ट्स वाले हैं दैट इज़ ओके। अच्छा जी, तो कनेक्शन हमने बना लिया है। अब हमने रेट, ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई है, ये अब हम एंड में चले लगा लेंगे। अच्छा, नाउ अब हमने रेटिंग्स इसकी सेट करनी है, जो कि हमारी ये मोटर और जनरेटर है। सॉरी। सो सबसे पहले हम मोटर की रेटिंग सेट करते हैं जी। ठीक है, तो इसका वोल्टेज जो है, आर्मेचर रेटेड वोल्टेज 200 है। देन मैक्सिमम आर्मेचर वोल्टेज भी 200 है। रेटेड करंट आर्मेचर का 8 एम्पेयर्स है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर लें, 10 एम्पेयर करते हैं। और आर्मेचर मैक्सिमम करंट हम इसका 200 कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली काफ़ी करंट फ्लो करता है। सो कुछ भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि अक्सर इसमें इशू आ जाते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम फील्ड वोल्टेज तो 200 है जी, हमने 100 देना है, लेकिन स्टिल हम इसको ज़्यादा कर देते हैं। ओके, रेजिस्टेंस है जी, देन ये फील्ड इंडक्टेंस एंड बाकी चीज़ें। तकरीबन स्पीड 1800 है। हमारी जो लैब में मशीन है उसकी 1500 रेटेड है, तो हम इसको 1500 पे रेट कर देते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स द जनरेटर, जनरेटर में बाकी चीज़ें आपकी उसी तरह रहेंगी। यू जस्ट हैव टू इंक्रीज दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड इन बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस यू विल गेट मोर आउटपुट। सो 500 हमने इसको रख दिया है जी, अपनी म्यूचुअल इंडक्टेंस को। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास ये सर्किट बन आ गया है, एंड कुछ चेंजेस इसमें हमने अभी और करनी है, जिस तरह के, अच्छा इसको भी मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, उस तरह भी ठीक था, लेकिन इस तरह अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें आप। एस्थेटिक्स का भी ज़रा सा हमने ख्याल रखना है। अच्छा, एस्थेटिक्स का अगर बात करते हैं, तो जो नीचे जो जितने भी कनेक्शन हैं, इसको आप सारों को सिलेक्ट कर लें। क्लिक ऑन नेट कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट देम ऑल, देन राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ दी दिस
वायर्स, क्लिक ऑन नेट कलर एंड क्लिक ऑन ब्लैक। तो अब क्या होगा कि ये सारी क्योंकि न्यूट्रल है, जो नेगेटिव है सप्लाई का, तो ये ब्लैक में आ जाएंगी। तो अगेन एस्थेटिक्स की बात है तो अच्छी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये कनेक्शन भी। ओके, साथ साथ सेव भी करते जाते हैं। सो नाउ कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हैं। जो बल्ब है आपका, ठीक है, बल्ब को भी आप ज़्यादा कर लें। ठीक है, वोल्टेज इसका 200 रख दें और वाट्स इसके 100 करते हैं जी। ठीक है, अब मीटर्स हम अपने ऑन कर लेते हैं। ठीक है, एक मीटर ये है, एक मीटर ये है जी। देन एक्साइटेशन तो हमें नहीं चाहिए होगी, लेकिन स्टिल हम इसको इधर रख लेते हैं। करंट और वोल्टेज, अच्छा। तो एक चीज़ हमसे मिस हुई है, जो कि आरपीएम हमने नहीं लगाया। एक तो टॉर्क हम यहाँ पे इसको ले आते हैं जी, डबल क्लिक कर लें ये, और हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट यहाँ लगा देंगे तो ये हमें टॉर्क देगा। और फिर आरपीएम के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि आप चले जाएं फाइल, ओपन सैम्पल्स एंड देन गो टू मशीन्स, और यहाँ पे हमारे पास टॉर्क स्पीड है। इसको ओपन करें जी और यहाँ से ये उठा लें, कॉपी कर लें। ठीक है, क्योंकि ये लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इधर से ही इसको यूटिलाइज करना होगा जी। ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड टू आरपीएम। अगेन इसको मैं रोटेट कर देता हूँ तो ये इधर फिट हो जाएगा। और चलें वापस इसको, कहाँ गया? ओके, तो इसी तरह रख देते हैं, चलें। एंड कनेक्टेड टू द शाफ्ट, फिर इसको आगे निकाल के डबल क्लिक एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो ये अब आपको आरपीएम भी शो करेगा। ठीक है जी। ओके, सो अब हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हैं और इसको एक रन देते हैं। फिर कोई इशू हुआ तो उसको देखेंगे। ओके, सो कुछ इशू दे रहा है अभी, जस्ट एक नज़र फिर चेक कर लेते हैं। एम्प्स, वोल्ट्स, ओके। अच्छा जी, तो मे भी इसकी वजह से हो, इसको हम ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं फिर देखते हैं। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इनकी जो कनेक्शंस हमने बनाए थे। नाउ दिस विल बी गोइंग टू 5%। ठीक है जी, 5 200 एंड इस 8.8, इसको वापस 8.8 पे रख लेते हैं जी। इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ये भी सही है। ओके, तो सीम्स गुड, लेकिन कुछ एरर दे रहा है जी, बट इट्स ओके। मैंने एक ऑलरेडी पहले से फ़ाइल बनाई हुई है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा आपके लिए।
सो लकीली मैंने एक फ़ाइल पहले से बना दी थी, तो जस्ट इसको अगर हम देख लें तो वी विल बी एबल टू कनेक्ट इट। अच्छा जी, तो जस्ट एक स्विच मिसिंग है वहाँ पर, और लेट्स सी कि अगर हम इस स्विच से इसका इशू हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, वहाँ पे नहीं है। तो लेट्स सी कि अगर हम इस स्विच से इस इशू को रिजॉल्व कर सकें तो इट विल बी वेरी गुड। नो, एंड दिस इज 300 वाट्स, ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इशू जो आ रहा है इसको मैं एक दफ़ा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। और इंडक्टेंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों की। दिस इज़ 800, 173, 200 ओके ओके। इंडक्टर का जो रेटेड करंट है वो हमने सेट नहीं किया, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे इंडक्टर का रेटेड करंट हमने रखा हुआ है 4 एम्पेयर्स, और इसको रखना है ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल रश इन करंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, एंड कुछ रन हो गया था, लेकिन यहाँ पे अगेन इशू आ रहा है, ठीक है। और भी देख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो। ओके, अच्छा, और तो कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसको मैं 100 कर देता हूँ, फिर से देखते हैं। और इसका वोल्टेज भी वहाँ पे 2, ओके, स्टिल कोई इशू आ रहा है इसमें। आई डोंट नो कि ओके 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 ओके, जस्ट फाउंड द एरर। ओके, यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमने ये जो हमारा, ये अगर आप देख लें, ये जो ब्लॉक हमने लगाया था, ठीक है, इसमें देखें आरपीएम हमने इधर दिए हुए हैं और रेडियन पर सेकंड इधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने इसको चेंज करना है, इस कनेक्शन को, ठीक है। इसने काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो वापस मैं इसको इधर ले आता हूँ, और ये देखें, तो अब हमारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हमारा इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। वी रन इट, ठीक है जी, रन हो गया है। ओके, अच्छा जी, तो अभी हमारी जो स्पीड है यहाँ पे काफ़ी कम है। हमने इसको वापस हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, अपना जो हमारा जो इंडक्टर था, ठीक है, ये वापस हमने मिली हेनरी में कर दिया। ओके, सो अब हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं जो हम चाह रहे थे, ठीक है। सो छोटा सा एक एरर था, ठीक है, जिसको हमने रेक्टिफाई किया है। जो हमने जो आरपीएम के लिए जो कनेक्शन लगाया था वो हमने गलत लगाया था। आरपीएम हमने जो साइड थी वो शाफ्ट को लगा दी थी और रेडियन पर सेकंड आउटपुट को, सो दैट वाज क्रिएटिंग एन इशू। लेकिन अब वो इशू रिजॉल्व हो गया। सो नाउ इफ़ यू सी, हमने सप्लाई दी हुई 100 वोल्ट्स की, और तकरीबन 5.58 एम्पेयर्स हमारे यहाँ पे जो
मोटर है वो ले रही है, ठीक है। एंड देन हमारी जो जनरेटर साइड है वहाँ पे हमने एक 100 वाट्स का लोड कनेक्ट किया हुआ है जी, और कुछ करंट वो कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, ओके दिस इज़ 1 वाट, तो हम इसको 100 वाट कर देते हैं, ठीक है। तो एक 100 वाट का हमारे पास लोड है और कुछ वो करंट ले रहा है। सो अब हम जाते हैं टेबल की तरफ, वहाँ पे ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सो टेबल में हमारे पास क्या क्या है इन द टेबल, इफ आई जूम इट, सो इसको ज़रा सा मैं इनलार्ज भी कर देता हूँ टेबल को। अच्छा जी, सो टर्मिनल वोल्टेज है जी, हमने 100 वोल्ट इसको दिए हैं, ठीक है। ये मोटर के एक्चुअली जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट्स। करंट हमारा मोटर का कितना है जी इस वक्त 5.58 एम्पेयर्स, ठीक है जी, दिस इज़ 5.58 एम्पेयर्स, ओके। ये इनको मैं ज़रा सा छोटा कर देता हूँ, एक साइज़ के इसमें आ जाए, ओके। देन इनपुट पावर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगी। आरपीएम देख लेते हैं हमारे कितने हैं जी। सो आरपीएम अराउंड हमारे पास 119.8, मतलब 1980 हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ 1980। एंड देन लोड करंट आप देख लें जी, लोड करंट ये वाला, ठीक है, मल्टीमीटर 4 जो है। एक्साइटेशन करंट हमें नहीं चाहिए तो इसको फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यू जस्ट नीड द लोड करंट, ठीक है जी। तो 258.56 मिली एम्पेयर्स हैं जी, 256.58 मिली एम्प्स। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को छोटा करता हूँ, अच्छा एक लाइन में ताकि आ जाए। एनीवेज ऐसे भी रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओके यहाँ इसके हम थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं। ओके, सो लुक्स गुड नाउ। अच्छा ईएमएफ हम देख लेते हैं, ईएमएफ कितना है हमारे पास, ईएमएफ आ रहा है 103.424। सो दिस इज़ 103.42 वोल्ट्स, ओके। सो ये हमारा ईएमएफ आ गया। अगेन फिर हमें छोटा ही करना होगा, इनको क्या कर सकते हैं, ओके। देन टॉर्क हम देख लेते हैं, कितना टॉर्क हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी। अच्छा इसको सारे को मैं 12 कर देता हूँ, ओके 12 सही रहेगा। 11 कर देते हैं जी, एक छोटा, ओके नाउ दिस इज बेटर। अच्छा जी टॉर्क हमारा कितना है जी, टॉर्क हमारा आ रहा है 19.9 सॉरी 12.9 मिली वोल्ट्स है यहाँ, 12.9, सो इट इज़ 0.129, ओके। तो ये मिली वोल्ट्स में एक्चुअली शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने इसको लिखना अच्छा सॉरी। अच्छा आउटपुट पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आउटपुट पावर फार्मूला यहाँ पे गिवन है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू आरपीएम। तो मतलब कि जो टॉर्क है हमारा 0.129, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 इंटू 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1980 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है जी। और फिर इससे जो वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसमें आप लोगों ने एक्चुअली जो आउटपुट उसका आ जाएगा। मैं जस्ट एक जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है जी। और इससे
RPM 33 आ रहा है हमारे पास। पाई की हम वैल्यू देख लेते हैं जी, सॉरी, पाई की यहाँ पे आ जाएगी 3.14 इंटू 2 से आ जाता है 6.28 एंड देन 0.129 अपनी जगह है। अब इनको आपस में आप जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट योर आउटपुट पावर। इनपुट पावर तो तकरीबन आपकी क्या आ जाएगी, 558 वाट्स आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 580 वाट्स। ठीक है जी। और यहाँ पे आउटपुट पावर जो एक्चुअली हम मैकेनिकल पावर इसकी कैलकुलेट करें, 0.129 मल्टीप्लाई बाय 628 मल्टीप्लाई बाय 33, तो इट बिकम्स लाइक 26 वाट्स। ठीक है, 26.7, मतलब अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट होगी इससे, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग द एफिशिएंसी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। बहुत कम आएगी, लेकिन समझने के लिए ठीक है। ठीक है कि किस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब आप लोड ज़्यादा कर दें जी। ठीक है, लोड को आप 200 कर दें एंड इसको स्टॉप करें, दोबारा से रन कर लें। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेटली वोल्टेज को अगर आप देख लें तो पहले था आउटपुट पे 103.48 और अब हो गया 103.372। इतना इफेक्ट नहीं आया जितना हमारे पास प्रीवियसली था 103.7, सॉरी दिस इज लाइक 372, यहाँ 37 कर लेते हैं एंड जो बाकी पैरामीटर्स हैं इसमें देखें तो आपका जो टॉर्क है वो ज़्यादा हो गया है, 258 हो गया जी, 0.258 एंड करंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा जी, 516 हो गया जी, 516 मिली एम्पेयर्स। तो हम जस्ट इनको थ्रू आउट लिख लेते हैं एंड बाकी अगर आप देख लें तो ये तो हमारे पास वैल्यू सेम है और स्पीड अगर आप देख लें तो स्पीड भी कांस्टेंट ही आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो स्पीड देखें आप तो वही 119.8 kV है। अच्छा जी, तो लोड डाल देते हैं और ठीक है जी, अब हम इसको लोड कर देते हैं 300। अब देखते हैं जी, अगेन टॉर्क ज़्यादा हो गया है। इसको मैं साइड पे ओपन रखता हूँ क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ तो सेम है, हमने जस्ट यहाँ पे ही चेंजेस करनी होंगी जी। ठीक है, तो टॉर्क हमारा अब हो गया है। अच्छा, ये लोड करंट देख लेते हैं। लोड करंट हो गया 774 और 103.321 हो गया है हमारा ईएमएफ जो कि आउटपुट पे जनरेट हो रहा है। टॉर्क हो गया है 0.387। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर हम इस पे लोड ज़्यादा कर लेते हैं जी, हम इसको 400 वाट्स कर देते हैं। अच्छा जी, अगेन देखें आप, टॉर्क ज़्यादा हो गया जी, लोड करंट भी ज़्यादा है, स्पीड हमारी वही है।
तो लोड करंट देख लें जी, 1 एम्पेयर पे पहुंच गया जी, ठीक है। एंड देन इस चेन के साथ वोल्ट्स हमने नहीं लगाए, वोल्टेज गिर गया है 103.269। अब ये इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा, ठीक है, जो हमारी सीरीज़ मोटर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। और यहाँ पे देख लें जी 0.516 हमारा जो टॉर्क है वो हो गया जी। जस्ट वन फाइनल रीडिंग हमारी रहती है, वो हम ले लेते हैं जी। अब हम इसको कर लेते हैं 500 वाट्स अपने लोड को। ओके, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 1.29 हो गए हमारे एम्पेयर्स। एंड देन the voltage has dropped to 103.218 volts एंड जो टॉर्क है वो हमारा हो गया 0.61645। और ये न्यूटन मीटर सेकंड में है, ये सारा टॉर्क जो है हमारे पास न्यूटन मीटर्स पर सेकंड में आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। एंड बाकी अगर आप स्पीड को देख लें जी, तो स्पीड हमारी वही होगी, ठीक है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द टेबल, ठीक है, तो हमारे इनपुट भी कांस्टेंट है। अगर आप देखें जी, इनपुट वोल्टेज करंट कांस्टेंट है और हमारी स्पीड भी कांस्टेंट है, तो हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंड देन you have to find these values and then the output efficiency as well. Okay, so this was the experiment. Then you have to draw the graph load current versus torque के load current के साथ torque पे क्या इफेक्ट आ रहा है। डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है आपका torque. Then load का sorry, this is the power, output power, so this is output power. ठीक है, तो आउटपुट पावर पे आपने देखना है क्या इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क पे और स्पीड पे, ठीक है। स्पीड कम होनी चाहिए लेकिन बहुत थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आपने ग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको बहुत जो रियल कंडीशन होगी, ठीक है, अब जिस तरह ये 8-9 था तो ये 7-9 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ 7 फिर 7-8 हो जाएगी, फिर मतलब बहुत कम इसमें चेंज आएगा, 7-7-9 7-6। okay, and then you have to write the conclusion as well. so कंक्लूजन में आपने ग्राफ और तो बहुत कनेक्शन को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, तो अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एंड कोई अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अटेंडेंस तो आज काफ़ी कम है। so, अच्छा जी, नोमान कह रहे हैं जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। बाकी लोग भी अगर टाइप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एक्टिव भी हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो नुमान, ठीक है, नुमान हो गए जी। हसन आप एक्टिव हैं? हसन, हसन आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो। हसन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जी। फहद, फहद आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख दें, ठीक है। अगर मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि यही जो हमने डायग्राम था हमारा जो अभी हमने बनाया है, तो इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
एंड ऑल्सो मैं ये इंडक्टर के जो पैरामीटर्स हैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो इंडक्टर के पैरामीटर्स थे सॉरी, इनको भी मैं यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जब आप बनाए हो इसको तो आपको इतना इसमें इशू ना हो। ठीक है, तो ये भी मैंने इधर पेस्ट कर दिए हैं। इनको मैं साथ साथ ऐसे रख देता हूँ ताकि तीनों विजिबल हों। अच्छा जी, तो अटेंडेंस हो गई है, तो इफ़ यू वांट टू लीव द सेशन आप लोग लीव कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे भी सही है।